Hello, dear students. Very good morning to everyone. So, today in this video, we are going to start our next chapter, chapter number 17, Forest, a Lifeline. Alright. In this chapter, we are going to discuss about all these topics. Topics are forest wealth, producers, consumers and decomposers, food chain, balance in nature, and forest conservation. So, as you all know, forests are very important for balancing our Earth's climate and supporting the cycling of the water. Okay, and they are home of many organisms. And India has different types of forest which display a wide and different varieties of animals and plants. Forests are rich in variety and shelter a large number of animals and insects. So forest जो है अर्थ के क्लाइमेट को बैलेंस करने में सपोर्ट करता है, वाटर साइकिल को मेंटेन रखने में सपोर्ट करता है. ऑलराइट, और इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी कैन से दैट बायोडाइवर्सिटी means different types of living organisms live in the forest. Means forest is a home of different organisms, insects, small organisms, plants and animals. So a typical forest consists of many layers and different types of plants grow to form different layers. So here I am going to explain you the layers of the forest. The first one is canopy. The trees, tops of all tall trees form a roof over the ground and block a good amount of light from entering the forest, and this is called canopy. All right. So as you can see in this diagram, in this picture, I mean, you can see canopy. The roof of the tall trees block the sunlight. ठीक है ना. ये जो रूफ होती है टॉल ट्रीज की, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रीज होती हैं वो काफ़ी, उनकी जो रूफ होती है वो क्या, जो सनलाइट होती है उसको एंटर नहीं करने देते हैं. ठीक है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है आपका, उस फॉरेस्ट में बहुत सारे टॉल ट्रीज होंगे. इस तरह से उनकी रूफ एक दूसरे से जुड़ी होगी. सपोज यहाँ पे एक ट्री है, अगेन एक ट्री है, अगेन एक ट्री है. ठीक है, उनकी रूफ काफ़ी एरिया में ऊपर से फैली हुई है. जो एरिया है उसने काफ़ी कवर कर रखा है. सो जो सनलाइट है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं. मतलब सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती. सो जो ये रूफ होती है टॉल ट्रीज का, इस रूफ को कहते हैं कैनोपी. एंड मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स, lizards found in this layer, and the canopy is the first and primary layer of the forest. Next one is understory layer है forest. So understory, the trees that grow under the shade of the canopy form the next layer. Means जो कैनोपी के शेड में जो और ट्रीज होती हैं, जो दूसरी लेयर है, ये दिस इज अ सेकंड लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. और ये ट्रीज ग्रो होते हैं अंडर द शेड ऑफ कैनोपी. ऑलराइट, इसे कहते हैं अंडर स्टोरी. और दीज ट्रीज आर स्मॉलर एंड हैव थिन ट्रंक्स. मीन्स अगर कंपैरिजन करा जाए टॉल ट्रीज से, तो ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं उनसे, और इनका जो ट्रंक है वो काफ़ी थिन होता है. ओके, कंपैरिजन टू टॉल ट्रीज. और यहाँ पे भी प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है क्योंकि कैनोपी जो है सनलाइट को ब्लॉक कर देता है. ओके, एंड सम ऑफ एनिमल फाउंड इन दिस लेयर आर बर्ड्स, बटरफ्लाइज, फ्रॉक्स, स्क्वेरल्स. एनिमल्स यहाँ पे फाउंड होते हैं. नेक्स्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट इज श्रब. So shrubs क्या होते हैं? Shrubs is a third layer of the forest, and this layer consists of young trees and mature shrubs. And the plants that grow here are between the smaller trees of the understory and the forest floor. Okay, and forest floor जो है contain करके रखता है क्या? All that matters
जो ह्यूमस होता है, डेड मैटर होता है, वो फॉरेस्ट फ्लोर कंटेन करके रखता है. एंड यू नो दैट द डेड मैटर रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल दैट इज used by the plants in the forest. And it is also very dark in this layer due to lack of sunlight, क्योंकि सनलाइट तो प्रॉपर रूप से नहीं आ पा रही है यहाँ पे, क्योंकि कैनोपी के थ्रू क्या, कैनोपी जो है सनलाइट को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तो सनलाइट पहुँच नहीं पा रही है नीचे, तो वहाँ पे क्या होता है, डार्क होता है काफ़ी. एंड द एनिमल दैट आर फाउंड इन दिस लेयर इंक्लूड spiders, earthworms, bugs. Okay, and the last one layer is herbaceous layer. So herbaceous layer that lie directly above the forest floor, जो forest फ्लोर के ऊपर ग्रो करती है. ठीक है ना, herbaceous layer कहते हैं उसे. दिस लेयर ऑफ ट्री, seedlings, ferns, grasses and weeds acts as a cover to the forest floor and does not receive much sunlight. मतलब ये कवर कर लेते हैं फॉरेस्ट फ्लोर को, छोटे छोटे ग्रासेस हैं, ठीक है ना, तो वो हर्बीसियस लेयर में आता है. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी सनलाइट नहीं पहुँच पाता है. एंड सम ऑफ द एनिमल्स दैट आर फाउंड इन दिस लेयर आर रैबिट्स, स्क्वेरल, mouse. All right. So these are the layers of forest canopy, understory, shrubs and herbaceous layer. I hope you all have understood about these layers. Now, if we talk about forest wealth, so you know that people depend on the forest for paper, timber, fuel, wood, medicine, and fodder, right? So, here let's try to understand how the forests are useful to us. So, forests help to maintain fertility of soil. So, फॉरेस्ट जो है सॉइल न्यूट्रिएंट्स और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है. नेक्स्ट है एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो दैट एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया अर्थ में तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants in the forest take in carbon dioxide and release oxygen, so they help to maintain the carbon dioxide level in the atmosphere. And next one is provide oxygen. So during photosynthesis plants release oxygen as waste, so this oxygen is useful by all animals including humans. So plants in forests maintain the ratio of carbon dioxide to oxygen in the atmosphere. And this is the reason why forests are known as green lungs. इसीलिए forest को green lungs कहते हैं. The next one is provide fodder. So fodder from the forest forms an important source of food for cattle and other grazing animals, right? You know that there are many varieties of grass, trees and shrubs found in the forest, and people are totally depend, especially in hilly areas, for fodder for their animals. Next one is provide fuel. So forest provide us fuel. You know that wood is an important source of energy as it is used for cooking and heating, and we get wood from forest. Forests provide us medicine. You know, forests have many medicinal plant and that are used to extract Ayurvedic medicine. So उनका आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज़ होता है. और इनफैक्ट टुडे मैन इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर हर्ब्स एंड प्लांट्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीज. ओके, जैसे नीम प्लांट है आपका, नीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द मेडिसिनल ट्रीज फाउंड इन इंडिया, राइट? तो नीम को एज अ मेडिसिन लिया जाता है. सो मेडिसिन जो फॉरेस्ट है वो हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, food from inorganic substance like carbon dioxide and water.
सो फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड खुद से बनाता है, सो वो क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। सो ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम soil, and this process is known as photosynthesis. And the food so produced is in the form of glucose or sugar. ओके, सो प्लांट क्या है, ग्रीन प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुद अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ओके। So we can say that any organisms that cannot make their own food and depend on others for food are called consumers. And consumer food either on producers or other consumers to survive. अब जो कंज्यूमर्स है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। एज यू नो दैट हर्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को ही फूड के रूप में लेते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो हर्बीवोर्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। एंड ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों कार्निवोर्स पे भी डिपेंड होते हैं एंड हर्बीवोर्स पे भी डिपेंड होते हैं। सो वी कैन से दैट सम एनिमल्स फीड ओनली ऑन ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। एंड सम एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, सो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। दे गेट देयर फूड इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। ले तो ये फूड इनडायरेक्टली प्लांट से ही ले रहे हैं, मीन्स ये हर्बीवोर्स पे डिपेंड हैं, लेकिन हर्बीवोर्स किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, तो इनडायरेक्टली ये भी प्लांट पे ही डिपेंड है, ऑलराइट। एंड एनिमल्स which feed on plants as well as animals also, they are called omnivores, alright। जैसे क्रो हो गया आपका, वो omnivores है, ह्यूमन बीइंग omnivores है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजर्स। सो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट फीड डेड ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको फीड करते हैं, ठीक है। मीन्स दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड रिलीज द न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, एंड फ्रॉम वेयर दे कम इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो डिकम्पोजर्स को गार्बेज क्लीनर्स भी कहते हैं एनिमल किंगडम का, क्योंकि जो भी गार्बेज होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको फीड करता है, उनको डिकम्पोज करता है, ओके। एंड दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय रिटर्निंग दैम, ठीक है ना। क्या करता है वो, प्लांट और एनिमल्स, जो डेड प्लांट एंड एनिमल है उनको, उनका जो है उनका ब्रेक डाउन कर देता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड गार्बेज क्लीनर ऑफ द एनिमल किंगडम। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, एक सीक्वेंस है। अ फूड चेन स्टार्ट विद अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स, ओके। एंड प्राइमरी एनर्जी सोर्स जो है वो सन है, और जो सन है, ग्रीन प्लांट्स जो है सन के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, and they prepare their own food in the form of sugar and glucose, all right। और उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सो ये तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हो गए, ओके। अब इस प्राइमरी प्रोड्यूसर में प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड है, all right। So next are the organisms that eat autotroph. These organisms are called herbivores और प्राइमरी कंज्यूमर्स। जैसे यहाँ पे ये रैबिट है तो ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये इस पे डिपेंड है, ऑलराइट। एंड द एनिमल दैट ईट हर्बीवोर्स, ये नेक्स्ट लिंक है चेन का, जो हर्बीवोर्स पे डिपेंड है वो उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर,
ओके। एंड जो फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड है उसे कहते हैं टर्सरी कंज्यूमर। सो एक इकोसिस्टम में इस टाइप का फूड चेन जो है आप देखेंगे, मीन्स फूड एंड शेल्टर के लिए एक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, ऑलराइट। और देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये प्लांट पे डिपेंड है, अगर डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड नहीं है तो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है, ऑलराइट। सो इसे कहते हैं फूड चेन। अब फूड चेन